Okay. Good morning, everyone, and welcome once again to I Empower session number 5. And we are really glad to have you here again today. Thank you, Anjum, Mr. Ram, and Reena for joining us today. We believe you have been with us, from the past sessions, and I hope if you missed, you were able to see the videos. Today's session will be taken by me and Bobby, and we will start by again introducing ourselves. So, Bobby, over to you to begin, and then I will take over in between. Yeah. Thank you so much. So very good morning to each one of you and a warm welcome. So let's start this session, and I will start with the real estate part, and then Atul will take over for the financial part. We can also share the screen Yeah, currently. just a sec, just a sec. So I am Power, as you know, because I have seen you all three people have attended previous session as well, and this is all about contributing to the society. And there is a small AV जो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा. So let's see this AV again. So this will clarify what is our purpose, what is our mission and vision. So I hope this audio was audible to you. Yes, it was. Okay. So some data on unclaimed wealth. So some 18,381 crore is into bank accounts, 15,167 crores with insurance companies, 17,880 crores with inactive mutual fund folios, and 26,497 crore in PF accounts. And this has been published in Economic Times, 5th of July 2002. So that's the reason Madhushri Boss has initiated this. So much of money is lying into the financial institutions, and people are not aware. The families are not aware. So a brief about us: we are a team of BFSI training professionals, and our why. So it has been shared earlier. So like deaths of many people in last few months, and the dependents struggling to get information about finances of the deceased person, that the cost due to which this initiative has been started. And key person on taking this initiative like ahead is Madhushri, and then we all of us joined her, and then we started this. Our vision to empower people with the help of financial literacy program. So this entire 5 sessions are mainly focusing on creating a financial education system, and these are the live sessions, and recording are also provided on the YouTube so that we can empower people with the right knowledge. हमारा एजेंडा क्या है? So like we are educating and spreading awareness about financial literacy so that you can take informed decision regarding financial matters. So लोगों के पास में सही information होना चाहिए, especially families के पास में सही information होना चाहिए so that वो उसको information को utilize करके जो unclaimed amount है उसको claim कर सकें. So we are a group of people who have come together to contribute for the larger society on non-profit basis. As you all know, ये जो भी हमारा initiative है, this is completely free and there is no profit activity which has been indulged in this initiative. So there are a few promises, like we will not sell anything to you like product services in any form. We will not give you suggestion related to financial planning. We will not collect any details about like your contact number, PIN number or Aadhaar number. आपका जो contact number है वो हमने
लिया था because we want to communicate on your WhatsApp number. That's the only logic there. We will not call you directly, and if someone is calling you directly, and definitely they are not associated with IM Empower. So that's the promise from us. So about the training team, all the trainers who are part of this. So I will again I will ask Madhushri Boss to, and then Atul, Harban, Sajeev, and Manoj, and then I will also give my brief introduction. Over to you, Boss. Yeah, hi everyone. Bobby, you could perhaps stop the slide presentation when we are all talking. So thanks for joining in. I see only 4 participants right now. Hopefully more will join in and others will benefit from the YouTube presentation. My name is Madhushri, and I have spent quite a number of years since 2000 to 2016. 60 years I spent in the insurance sector, and all the lovely people in this trainer group, except for Manoj, have been my colleagues in the past. And why have we started this? Because just after the second wave of COVID, we realized, a couple of us realized that people around us were really struggling to get a handle on what is the financial status that they're living with. So there is that emotional part of having lost somebody important, but at the same time, if life has to go on, to really look at where do I start vis-a-vis my finances? That question itself, very educated people, otherwise educated, were not able to answer for themselves. And it also became a very fertile ground for a lot of fraud was happening. That's when we decided that we should come together and do something, whatever we can within our limits. These sessions are meant for that. Request to anybody who's watching at whatever time, please circulate the YouTube links to others so that anybody who is needing to understand anything about very basics, we are not getting into details, very basics about various topics like insurance, हमारा कहाँ से कितना पैसा आएगा, लोन कैसे मिलेगा, business में मेरे को कितना पैसा मिलना है, those kind of things we have covered in the last few sessions. आज के session में we are going to cover reasonably complicated topic, real estate, or again we'll keep it very basic. So that's about me and the entire initiative. Thank you for watching, and over to you, Bobby. Yeah, thank you, boss. Over to you, Atul. Hi, good morning, everyone, and good afternoon and good evening to all those who are watching at different times. Ma'am has already given the introduction to the the purpose of this entire initiative. I have been associated with her since almost 14 years now, during the job or after we were working in different companies. I have total around 17 years of experience in BFSI space again, and financial knowledge while we were focused on insurance, but I have spread my dipped my fingers in various asset classes, because as a whole, the financial literacy, you can't just be educated by knowing one area. So that's a bit about me. Harbans, over to you. Thank you, Atul and Madhushri. So I am Harbans Lal Arora. I am based out of Faridabad near to Delhi, and I'm working with the BFSI, banking, financial services, and insurance sector from last 21 years. And I feel amazed at how this industry moved on, and we thought that let's together contribute something back into the society. Whatever we learned, our objective through this series of programs is give it back to society, so that it's there on YouTube and right now live with you people. Later on, it's permanent there, and whoever can take benefit out of it without charging even a single penny, no data sharing. Only and only objective is to give it back. With this, I invite Sajeev to go ahead. Thank you, Harbans. Myself, Sajeev Kaidalal from Cochin. Been associated in BFSI industry for last 21 years, much like Harbans, our roadmaps are similar. I mean, people we associate right here, right now, as similar roadmaps we have, that we have been together for quite some time. And as Harbans shared,
that we have got so much from this industry that we thought it is our duty to give it back to the society what we have received. So that is why we are here, happy to associate with iEmpower, and really wish the very best for this great initiative. Thank you. Thank you. Thank you, Sajeev. Manoj? Hi, I'm Manoj from Varanasi, working in BFSI sector from last 30 years and faculty for the banking. What we are actually, we already started the initiation for the financial literacy program in different places, and whatever our you can tell, our mission is to literate the people about the financial world, because you see a lot of that day, few days back, I gone to bank, I found a lot of people who have died due to COVID, but their claiming was very difficult in SBI. So these kind of things are there that we want to educate on that particular field, that it will be easier to do that job. Thank you. Thank you. Thank you, Manoj. So about myself, my name is Bobby Jiwal and I am from Pune, and I'm into financial services domain from last more than 20 years. And I'm also especially into a training. Currently, I'm having my own venture into financial services, edutech and training. And so thank you for making me a part of this initiative. A special thanks to Madhushri, Harbans, Atul, each one of you. And I love to be an associated for any such initiative going forward as well. Now coming to the back to our topic. So let's see what all challenges are there, and in case if a bread earner is no more and if they have a property, how their family can proceed. So just give me a sec, I will share my screen and then we will start. So this was about us. So program, these are 5 programs, and we are now into the last program, which is program 5, and clearly 2 defined learning objectives, like how to identify about real estate and claim it, and how to close all loans, credit card, monthly subscriptions, tax liabilities. और इससे पहले हमने जो 4 प्रोग्राम किए हुए हैं ऑलरेडी YouTube के ऊपर अपलोडेड है. In case someone has missed, you can go, you can search iEmpower channel and you can watch these programs. And my suggestion and my recommendation would be please share these programs to people whom you feel are the right target for such kind of financial literacy program. So, and the status of legal heirs and real estate of deceased. जैसा मधुश्री बॉस ने कहा थोड़ी देर पहले, a bit a complicated subject, real estate, क्योंकि बहुत सारा I will say कि there are various laws which are there to govern real estate, especially for the legal heirs to claim the property. Understand the process to claim the property, how to deal with credit card dues, and check status of loans of deceased person. So as we all know, all financial instruments are linked to PAN and Aadhaar. हम लोग को पता ही है ये बात. So all financial instruments are also need mobile number or an email ID for verification, regular updates. So ये 2 key points हैं, like PAN or Aadhaar and mobile numbers, which we can use to trace, right, properties or financial instruments as well. So इसमें करना क्या है? सबसे पहले PAN number देखना है, ठीक है, दूसरा आधार, तीसरा PAN number, सॉरी मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर फैमिली के पास होगा ही होगा, और ईमेल आईडी. तो ये these are 3 things which are important in case to take this forward. अब पहला सवाल जो आता है वो आता है कि हाउ टू ट्रेस रियल एस्टेट ऑफ डिसीज, कि भाई पता कैसे चले, बिकॉज देयर वुड बी अ चैलेंज. काफी सारे लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, शेयरिंग नहीं करते हैं, फैमिली को पता नहीं होता है, तो दैट कुड बी वन चैलेंज. और ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम इसी के लिए रखा गया है. हाउ टू क्लेम द प्रॉपर्टी, हाउ टू क्लेम द प्रॉपर्टी, लीगल प्रोसीजर, इंडियन सक्सेशन एक्ट. ये 4 बातें हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर. हाउ टू ट्रेस रियल एस्टेट ऑफ डिसीज, तो इसमें पहला हम देखेंगे द प्रॉपर्टी डिटेल्स आर रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफिस. तो कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, एंड हार्ड कॉपी ओनली विद प्रॉपर स्टैंपिंग, सर्च
them in cupboards, bank lockers or in almirah. तो करना क्या है कि ढूंढना है, घर वालों को ढूंढना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं घर के बैंक लॉकर में तो नहीं रखे हैं, अलमीरा में तो नहीं रखे हैं, कपबोर्ड्स वगैरह में। उनको ढूंढना है कि प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट्स है, डेफिनेटली होगा, घर में होगा, और अगर घर में नहीं है तो दे नीड टू फाइंड इट इन रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस में ढूंढने के लिए व्हाट दे नीड टू डू इज they need to like collaborate with one advocate. उनको पैसा देना है और पैसा देके उनको बोलना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में वो ढूंढे। They can be easily identified as they consist photo of seller and buyer and last page with impressions of thumb and finger. So इसके लिए जो डीड है, डीड के लास्ट पेज पे आपको इंप्रेशन भी मिल जाएगा, थंब इंप्रेशन भी मिल जाएगा, फिंगर्स भी मिल जाएंगे, फोटो भी मिल जाएंगे। If the deceased had booked any flat or house in a housing scheme, we can trace through booking papers. तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जब फ्लैट बुक किया गया होगा या घर बुक किया गया होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया गया होगा बिल्डर के साथ में या सोसाइटी के साथ में। सो जो पेपर्स हैं वो पेपर्स के थ्रू भी डिसीज की डिटेल्स चेक की जा सकती हैं और फैमिली पर्संस उसको ढूंढ सकते हैं कि उनके नाम पे क्या कोई है फ्लैट जो बुक किया गया है। माइट भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो या माइट भी शायद ऐसा प्रॉपर्टी हो जो रेडी टू यूज हो। You can also go through the bank accounts for large transaction and where it paid to find the details of investment in real estate. तो इसके लिए एक और जो आसान तरीका है वो ये है कि जो भी पेमेंट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो आप रियल एस्टेट का कोई भी अगर आज पेमेंट देखेंगे, सो गॉन दोज डेज जब कैश में पेमेंट होता था, नाउ इट इज मोस्टली ट्रांजेक्शंस आर डन इन ए वाइट। सो आइदर एनईएफटी किया होगा या फिर उसको नेट बैंकिंग के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू पेमेंट किया गया होगा या चेक के थ्रू पेमेंट किया गया होगा। सो अगर बैंक डिटेल्स को अगर ध्यान से देखा जाएगा, उनके रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखा जाएगा, तो जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं उनके थ्रू रियल एस्टेट डील के बारे में पता किया जा रहा है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है। आप बैंकिंग अकाउंट्स देखिए, बैंकिंग अकाउंट में आपको एक बड़ा ट्रांजैक्शन दिखेगा और उस ट्रांजैक्शन के थ्रू पता किया जा सकता है क्या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। A case may be there that said property taken from loan may be from bank, NBFC, housing finance company. ऐसा भी केस हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के लोन से ली गई हो। तो निश्चित तौर पे वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास में मॉर्गेजेस होंगे प्रॉपर्टी के, और यू कैन फाइंड द डिटेल बाय विजिटिंग बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो अगर लोन से ली गई है तो डेफिनेटली घर पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आता होगा बैंक की तरफ से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरफ से लोन के ऊपर, और अगर वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है से आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन गो टू बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड यू कैन आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स। आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वहां से मिल सकते हैं। Third thing is EMI detail will be visible in bank account under ACH, automatic clearing house. तो अगर लोन लिया गया है it is easier कि मैं उसको ट्रेस कर पाऊं, क्योंकि जो लोन है लोन का EMI बैंक से कटता होगा, और अगर मैं जब ट्रांजैक्शन देखूंगा तो ट्रांजैक्शन में वो सारे लोन्स दिखेंगे, EMIs दिखेंगे, उसके थ्रू भी मैं ट्रेस कर सकता हूं। Detail can also be searched with local registry office with help of an advocate about details of property in named deceased. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लोकल रजिस्ट्री ऑफिस में आप जो भी फैमिली है वो उनके साथ में कोऑर्डिनेट कर सकती है, और वो काम आपको करने के लिए यू विल रिक्वायर वन एडवोकेट। एडवोकेट को आप फीस दे दीजिए और वहां का जो एडवोकेट है वो हेल्प करेगा फैमिली को रजिस्टर ऑफिस में चेक करने के लिए कि क्या उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। अभी क्लेम कैसे करना है? So when property is identified, the process of claim starts. तो एक बार मुझे पता चल गया, फैमिली को पता चल गया कि उनके नाम पे क्या प्रॉपर्टी है, तो फिर क्लेम प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स व्हिच फैमिली नीड टू कंसीडर। पहला है फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द डिफरेंट सिनेरियो पॉसिबल। तो पहला है प्रॉपर्टी परचेज बाय फाइनेंसिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो प्रॉपर्टी अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली गई है तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली गई है तो देयर विल बी ए डिफरेंट रूल्स। आगे हम लोग देखेंगे कि लोन वाली जो प्रॉपर्टी है उसको उसके ऊपर कैसे प्रोसेस करना है, उसको कैसे क्लेम करना है। दूसरा है प्रॉपर्टी परचेज बाय ओन रिसोर्सेज। खुद के पैसे से अगर प्रॉपर्टी खरीदी गई है तो हम लोग देखेंगे कि उसमें किस तरह का प्रोसेस फॉलो होगा। एंड थर्ड इज इट्स एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी हो सकता है खानदानी प्रॉपर्टी हो, और खानदानी जो प्रॉपर्टी है सो वी विल सी कि उसके ऊपर किस तरह का रूल्स रेगुलेशन
अप्लाई होगा। If property is purchased by loan from financial institution, then transfer of the said property only possible after closure of the loan. तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर प्रॉपर्टी लोन पे ली गई है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसका ट्रांसफर तभी पॉसिबल होगा जब लोन क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स फैमिली को वो लोन क्लोज करना होगा। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि अगर बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर्टी ली गई है तो उसके ऊपर उसको उसके रिस्क को कवर करने के लिए या लायबिलिटीज को कवर करने के लिए इंश्योरेंस भी शायद बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया होगा। सो वो भी चेक करना जरूरी है कि अगर लोन पे ली गई है तो क्या उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस है। अगर इंश्योरेंस है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी और वो बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो भी रिमेनिंग लोन अमाउंट है वो दे देगी। एंड इन दैट वे दैट प्रॉपर्टी कैन बी फ्री, और फिर जो फैमिली है डिसीज्ड का वो उसको प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। इफ इट इज अ जॉइंट लोन, then loan will be transferred in name of co-borrower, but condition that co-borrower has repaying capacity. तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर। काफी बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ लाइक दे आर लाइक, हस्बैंड ने लिया होगा तो वाइफ को बोरोवर बनाया होगा। सो ऐसे केस में जो लोन होता है अगर हस्बैंड का डेथ हो गया है तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू वाइफ, बट वहां पर बैंक ये जरूर चेक करता है क्या रीपेइंग कैपेसिटी है, एंड लोन हैज टू बी क्लोज बिफोर ट्रांसफरिंग द सेम। तो सेम रूल इज एप्लीकेबल कि अगर आप ये जो लोन है ये लोन को क्लोज करना जरूरी है, बिना लोन को क्लोज किए आगे का प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। अब नाउ कमिंग टू कि अगर कोई विल है जो डिसीज था उसने अगर कोई विल लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से दैट इज द राइट वे, एंड उससे काफी सहूलियत हो जाती है। काफी सारे जो इश्यूज आते हैं वो नहीं आएंगे अगर विल बनाया हुआ है। तो इफ देयर इज अ विल द ट्रांसफर प्रोसेस इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोवाइडेड नो वन कॉन्टेस्टिंग द विल। सो काफी आसान हो जाता है, बट एक ही कंडीशन है कि उस विल को कोई कंटेस्ट ना करे। द एग्जीक्यूटर विल एडमिनिस्ट्रेट द ट्रांसफर बेस्ड ऑन द बेनिफिशियरी स्टेटेड इन द विल। तो जो एग्जीक्यूटर है वो उसको विल को एडमिनिस्ट्रेट करेगा और उसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी हैं बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो भी प्रॉपर्टी है। इन द एब्सेंस, तो विल अगर है तो काफी आसान है। तो विल में ऑलरेडी इट विल बी मेंशन कि किसको मिलना चाहिए, सो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड until it has been like contested. अगर उसके खिलाफ किसी ने contest कर दिया है कोर्ट में तो फिर that's a different legal process which will go. But अगर will नहीं है तो उस केस में क्या होगा? So ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। The property is distributed based on the applicable succession law. तो यहाँ पर जो पॉइंट ध्यान रखना है हमको याद रखना है वो है सक्सेशन लॉ। सक्सेशन लॉ के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि प्रॉपर्टी किसको मिलना चाहिए, और वहां पर फिर सक्सेशन लॉ मींस कि देयर विल बी अ कोर्ट एज वेल एंड देयर विल बी अ सर्टेन प्रोसेसेस व्हिच नीड टू बी फॉलोड, और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि प्रॉपर्टी किसको मिलेगा। लीगल हेयर्स कैन आल्सो म्यूचुअली डिसाइड अमंग देमसेल्व्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इफ थिंग्स आर एमिकेबल। सो अब जो लीगल हेयर्स हैं अगर विल नहीं है तो वो लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं, जो भी एसेट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं, और म्यूचुअल अगर एग्रीमेंट है तो देन थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। फिर वहां पर कोई बहुत परेशानी आने की संभावनाएं बहुत कम है। बट इफ देयर इज एन डिस्प्यूट तो देन अगेन रूल याद रखना है जो हमको वो है दैट इज सक्सेशन लॉ। उसके हिसाब से ही ये प्रॉपर्टी जो है जो रिमेनिंग लीगल हेयर्स हैं उनको मिलने वाला है। Once they finalize the distribution, heirs can draw a family statement deed where each member signs, which can then be registered for official record. तो एक बार घर वाले जो भी हैं उन लोगों ने मिलके डिसाइड कर लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना चाहिए, फैमिली में किस तरह से सेटलमेंट होना चाहिए, तो उसका एक सेटलमेंट डीड बनता है जहां पर सारे लोग साइन करते हैं, और फिर वो उसका डीड का रजिस्ट्रेशन भी होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सो अब ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसे कराएंगे डिसीज से? सो सिंपल, वी ऑल नो उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है। तो यू नीड टू अप्लाई एट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस। हर सिटी में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहां पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अप्लाई करना होता है। यू विल नीड द ओनरशिप डॉक्यूमेंट, द विल विद प्रोबेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो अब अगर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जा रहा हूं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर विल है तो द विल विद प्रोबेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट, और अगर विल है तो विल के साथ में प्रोबेट और
या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी, अकेले विल से नहीं होगा, ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए. सो देयर इज अ प्रोबेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू टेक दिस फॉरवर्ड. सो पीपल लिविंग इन फ्लैट्स आर गवर्न्ड बाय द कोऑपरेटिव लॉ ऑफ द स्टेट. तो अब मान लीजिए जैसे आप अगर मेट्रोस देखेंगे तो मेट्रोस में नॉर्मली लोग फ्लैट्स में ही रहते हैं, लाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली. सो वहां पर जो लॉ है वो लॉ इज गवर्न्ड बाय द कोऑपरेटिव लॉ ऑफ द स्टेट which provided for the nomination of the house in case of death. So उस केस में जो नॉमिनेशन है उस प्रॉपर्टी फ्लैट के ऊपर जिसका भी नॉमिनेशन किया गया है, तो उस केस में वो जो नॉमिनेशन है जिस तरह इंश्योरेंस पॉलिसी में या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में नॉमिनेशन होता है, उस तरह फ्लैट में भी नॉमिनेशन किया जा सकता है और उस नॉमिनेशन के बेसिस पे दिस कैन बी टेक फॉरवर्ड. हाउएवर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो ध्यान रखना होगा, A nomination is not the same as bequeathing a property by will. तो nomination का मतलब ये है कि easily transfer of assets, उसका हक नहीं है. अगर उसको प्रॉपर्टी के ऊपर लीगल अर्स क्लेम कर देते हैं, so again there are certain laws और वो laws है like succession law है. So again court will come into a picture and they will decide कि इसको कैसे आगे लेके जाना है. But for easily transferable of assets, a nomination होता है that will make this easy. It may be noted that the nomination only provides for the transfer of the name. तो यहाँ पर एक क्लैरिफाई किया गया है, नॉमिनेशन से नाम ट्रांसफर होता है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी. हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में वो नाम चेंज हो जाएगा, but it does not make the nominee a full-fledged owner of the flat. The legal heirs are the beneficial owner of the property and the nominee cannot dispose the asset for his own benefit. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो लीगल heirs हैं उनका ही इसके ऊपर हक है प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो नॉमिनी है जिसके नाम पे फ्लैट है वो प्रॉपर्टी को या एसेट को बेच नहीं सकता है. Bobby, I think let's wait for a while and let's just, because lots of information we have. Yes, boss. Right, and let's see if anybody has any question or any discussion. One here who is there are just 4 of participants. Anyone of you who is finding any of this information relevant, want to ask a question, please do so now. We'll hold for about 30-40 seconds. You could raise your hand and we will mute yourself if you have a question. Got that, Ram. Ram says I have no questions. Okay, so you could still raise hands if you're having questions. We can just go ahead. Thanks. One moment, one thing I want to clear. Actually, nominee means trustee. He does not owns the property. He is trustee of the property. Right. And his work is to handle the property to the beneficiary owners who are the legal heirs. Right. Thank you. That's a very, very important point, and Bobby has already covered it, but it's valid to reiterate it. हम सोचते हैं कि नॉमिनी कर दिया है तो हमारा काम खत्म और उसके बाद हमारे नॉमिनी को मिल जाएगा, वो दैट इज नॉट द स्टेट. एंड इफ यू थिंक कि आप नॉमिनी है प्रॉपर्टी में, इसका मतलब आपको मिल जाएगा, वैसा नहीं है. जैसे बॉबी ने बताया, सक्सेशन लॉ, लीगल हेयर, ऑल ऑफ दैट कम्स इन प्ले. विल हो या ना हो, लीगल हेयर का बहुत जरूरी होता है एस्टैब्लिश होना. और अगर विल है तो ऑफ कोर्स इन the itself gives you the legality and assurance. Yeah, the best thing is to make a will, ma'am. Yes. Right. Yes. So should I take this forward? I think there's no more questions. Let's go. Okay. So this we already covered. So let's understand few more point. So in case of no will left behind, so ये थोड़ा difficult situation है कि अगर will नहीं है. और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली केसेस में आपको ऐसा ही मिलेगा जहाँ पर will नहीं होती है, बनाई नहीं गई होती है, knowingly unknowingly. काफी लोगों को तो उसके बारे में पता भी नहीं होता है.
So in case of deceased owner of property does not have leave behind a will, the legal heirs will inherit the asset as per the provision of Hindu Succession Act. ये important है, Hindu Succession Act 1956. तो इसमें Christians, Parsi and Muslims को छोड़कर everyone is covered into Hindu Succession Act. और हिंदू सक्सेशन एक्ट में 31 अलग अलग रूल्स हैं, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि ये प्रॉपर्टी किसको मिलना चाहिए. एंड अगेन देयर इज ए कोर्ट, फिर लीगल प्रोसेस है पूरा उसके लिए, एंड वो प्रोसेस से जाना पड़ेगा और उसके प्रोसेस के बेसिस पर इट विल बी डिसाइडेड कि प्रॉपर्टी किसको मिलना चाहिए. द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू क्लास 1 लीगल हर्स. तो जब आप देखेंगे, मतलब ये सक्सेशन एक्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, and lot many information is already available in public domain. So ideally my suggestion is ki family should consider a legal advocate who is a subject matter expert rather than going for information which is available in public domain. वो information से एक idea लगता है उनको, but I think the right way is they need to hire an advocate who is a subject matter expert. So पहला जो preference मिलता है वो class 1 legal को बनता है. सो अगर आप देखेंगे तो देयर इज ए कैटेगरी इन क्लास 1 के अंदर जिसमें जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं, लाइक बच्चे हो गए, सन हो गया, डॉटर हो गया, वाइफ हो गया, वो सारे क्लास 1 में आते हैं. उनको पहला राइट मिलता है, व्हिच इंक्लूड्स क्लोज रिलेटिव्स लाइक पेरेंट, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर सक्सेसर्स. व्हेन इट कम्स टू ईच ऑफ देयर शेयर्स, सन एंड डॉटर्स एंड पेरेंट्स विल हैव इक्वल शेयर्स. ये भी एक इंपॉर्टेंट है. आई थिंक 2005 में ये अमेंडमेंट आया था जिसके बाद डॉटर्स को भी हक मिलता है. स्पाउस टू विल बी एंटाइटल्ड टू 1 शेयर. तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, स्पाउस को भी एक शेयर इसके अंदर मिलता है. सो दिस इज लाइक ब्रीफ अबाउट, इट्स अ वेरी डिटेल्ड वन, काफी बड़ा है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट. और उसका क्रक्स यहाँ पर लिखा गया है कि जो क्लास 1 लीगल हर्स हैं उनका पहला राइट बनता है और वो उसको क्लेम कर सकते हैं. हाउएवर इन केस देयर आर मोर देन 1 सर्वाइविंग स्पाउसेस, ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है, दे ऑल विल शेयर द 1 पोर्शन दे आर एंटाइटल्ड टू. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ध्यान दीजिए, स्पाउस को एक शेयर मिलेगा और अगर एक से ज्यादा स्पाउसेस हैं तो फिर उस केसेस में ये जो एक पोर्शन है दैट विल बी डिवाइडेड. तो देयर सक्सेसर टू विल गेट ओनली 1 शेयर विच द पर्सन थ्रू हुम दे आर क्लेमिंग वाज एंटाइटल्ड टू. या उनके जो सक्सेसर्स हैं उनको भी उतना ही हक मिलेगा, दैट मींस 1 शेयर. सो few more points. When a house has been left without a will, a female heir is entitled to claim a share and stay in the house. One more important point, अभी will नहीं है और female है is entitled to claim a share, वो claim कर सकती है और उसको ये हक दिया गया है कि वो घर में रहे. However, only the male heir has a right to divide the property and the female heir cannot call for a partition. तो ये ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाला बात है. फीमेल घर में रह सकती है बट जो मेल है उसको हक दिया गया है प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का, और वो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी वो मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में ऑलरेडी कवर कर लिया गया है. फीमेल को पार्टीशन का राइट नहीं है डिस्पाइट लीविंग ए विल. अब यहाँ पर आप देखेंगे रेड में बोर्ड में ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है. It's still necessary for the legal heirs to obtain a succession certificate from the court. Will होने के बाद भी succession certificate लेना जरूरी है. It's the legal document that authorizes the person or people obtaining it to represent the deceased individual for the purpose of collecting debts and security dues to him or a payable in his name. तो succession certificate है जिसके basis पे actually rights आ जाते हैं deceased जो बंदा है उसके पास में उस property से related, और वो फिर इसको आगे के जो प्रोसेस, वो जो प्रॉपर्टी अपने नाम पे हो जाएगी, कोर्ट से करा सकता है और उस डेट्स कलेक्ट कर सकता है. सिक्योरिटी पेपर्स अगर कुछ है तो उसके नाम पे, डिसीज के नाम पे जो थे वो सारी चीजें, मतलब चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, वो सारा सब सॉर्ट आउट हो सकता है बिकॉज देयर इज सक्सेशन सर्टिफिकेट व्हिच इज गिवन बाय द कोर्ट. For obtaining the succession certificate, an application need to be made to a magistrate or high court. तो ये succession certificate कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको केस फाइल करना पड़ेगा, एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, वो प्रोसेस को फॉलो करके सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया जा सकता है. तो अकेले विल से नहीं होगा, विल को सक्सेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है टू मेक दिस प्रोसेस इजियर. तो सक्सेशन सर्टिफिकेट, yeah, Bobby, one point actually why it is there, because that person who is deceased may have debts also. So right. Debts are paid as per the what percentage of
share I am getting is assets. So that's why it is necessary to get a succession certificate, because what percentage of liability I am taking from the deceased person. Thank you, Manoj. Yeah, valid point. So succession certificate is a legal document that authorizes the person or people obtaining it to represent the deceased individual for the purpose of collecting debts and securities due to him or payable in his name. तो अभी मनोज ने जो पॉइंट बोला था उसको ही इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है. यही है जो ऑथराइज करता है जो भी बंदा है उसको कि वो रिप्रेजेंट कर सकता है डिसीज्ड को फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग. अगर उन्होंने कुछ कर्जा दिया था तो उसको भी कलेक्ट कर सकता है, उनके नाम पे कुछ सिक्योरिटीज है तो उनको भी, और whatever instruments are there or loans are there that need to be like whatever percentage is there, उस percentage के हिसाब से वो उसको process कर सकता है. अभी यहाँ तक प्रॉपर्टी के ऊपर था, रियल एस्टेट के ऊपर था. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड. लास्ट पॉइंट अगेन फ्रॉम माय साइड, आई एम नॉट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन रियल एस्टेट बिकॉज स्पेशली इसके अंदर जुडिशरी इन्वॉल्व होता है और उसका पूरा एक मैं बोलूंगा कि एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड, नॉलेज इज रिक्वायर्ड. सो पीपल हु आर डीलिंग in that specific field like advocates, I think those people are the right people. In case if someone ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड यू नीड टू टेक लाइक सर्विसेज फ्रॉम एडवोकेट हु आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड दे विल टेक दिस फॉरवर्ड. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ओवर टू यू अतुल. Thank you Bobby, and before we go ahead there is a question Gaurika, and I will need Manoj's assistance to answer this. Bobby, you can continue with the slideshow. Okay. Yeah, that's okay. So in the meanwhile, so the question is कि अगर will है लेकिन registered नहीं है will, and हम सब जानते हैं कि generally एक तो will बनती नहीं है इंडिया में, इतना common नहीं है will बनाना, और अगर will बनाते भी हैं तो उसको register सब लोग नहीं कराते हैं. तो अगर registered will नहीं है तो उस केस में क्या होगा? और गौरी ने एक और पॉइंट लिखा है कि जो बाकी के एयर्स हैं उन्होंने कुछ एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब लेटर दे रखा है कि हाँ हमको इसमें कोई क्लेम नहीं चाहिए, तो उस केस में ट्रांसफर कैसे होता है? सो यस, इट इज मनोज जी, कैन आई आंसर? प्लीज. यस, एक्चुअली देखिए, अगर विल अनरजिस्टर्ड है तो इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज अ विल. सो इन दैट केस इट इज अनरजिस्टर्ड मींस इट इज नॉट वैलिड. इन द केस it should be registered. If you have a will, it should be registered. If it is not registered, then it is not valid. Then next question part is that if all the legal heirs are forfeiting their rights and authorizing one person to collect the asset of the deceased, then again you go for the succession certificate. Rest of the people will sign in the indemnity that we are not claiming this property, and property can be transferred in the name of the whom they are amicably agreed to transfer. Then it will be easier because it is a easier process. Right. So Gauri, to summarize, will नहीं है अगर registered तो will की तरह उसको treat नहीं करेंगे, number one. Number two, that will be like similar to absence of will, और उस केस में जो normal succession law होता है वो applicable होगा. तो उसमें जो जो सक्सेसर्स होंगे डिसीज्ड की वाइफ या इमीडिएट चिल्ड्रन, और अगर उनमें भी कुछ लोग अपना राइट फॉरफिट कर देते हैं, नो ऑब्जेक्शन दे देते हैं, तो जो एक बंदा बचेगा उसको हम ट्रीट करेंगे सक्सेशन के लिए कंप्लीटली, एंड द सक्सेशन सर्टिफिकेट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट देयर. सो रीना का क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू गेट इट ट्रांसफर्ड इन एब्सेंस ऑफ एनओसी फ्रॉम सिबलिंग्स? सो रीना, हाँ Manoj ji, go ahead. Not possible, because it is Succession Act. Everyone has a share. Either you simply forgive your share, then only it is possible. Otherwise, it is not possible. और रीना जी, आपने जो बताया वो तब पॉसिबल है अगर डिसीज ने एक रजिस्टर्ड विल बनाई है जिसमें उसने सिर्फ एक ही पर्सन को अपनी पूरी जायदाद का मालिक बनाया है और किसी के नाम कुछ नहीं छोड़ा है, और वो एक रजिस्टर्ड विल है. उस केस में वहां पे सक्सेशन लागू नहीं होगा और वहां पे ये हो सकता है. मनोज जी, आई होप दैट इज करेक्ट. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर उसने विल बना, मैंने बोला ना कि बेस्ट सोल्यूशन है सर आज के जमाने में कि आप विल बना के रखिए. अदरवाइज इट विल बी सो मच प्रॉब्लमेटिक. You have to run to the court. It takes almost 1 month, 2 months to get a succession certificate, property to be valued. So many problems are there. And then you have to pay stamp fee also for that succession certificate. Okay. So instead of that, better solution, you get a will.
Okay, we hope. In this case, there is a will in the name of two daughters, and the Okay. two sons are not signing the NOC, but the will exists. So Will is registered. Yes. The will is registered, then it can be given to the courts that because the person has transferring his property to his two daughters only and not giving anything to son, that will be applicable. Okay, thank you. Okay, thank you everyone. Gauri, we hope we were able to answer your question. So moving ahead, Bobby, I'll need your assistance to move the slides. Thank you. So now, after property, now let us also understand in terms of loan, how things happen, and when the person has taken a loan and the person is no more, कैसे होता है. So सबसे पहली चीज तो लोन जो है वो pay off तो होने होते हैं. They need to be paid off if the person is no more there. But इसका कोई एक well defined तरीका नहीं है. And when we talk about the case where there is a co-borrower, or in case there is not a co-borrower, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. और कई बार ऐसा भी है कि अगर बंदे ने लोन लिया है, is it a secured loan or an unsecured loan? So अगर secured loan है तो वहां पे हमारे पास एक एसेट है जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको जब्त कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है. लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो वहां पे जनरली कुछ नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पैसा रिकवर करने की, डराने की, धमकाने की. बट यहाँ पे हम लीगल एंगल से बात करेंगे, जो लॉ है उसके हिसाब से हम बात करेंगे. तो ऐसा कोई वेल डिफाइंड चीज नहीं है, बट वी विल गिव यू पॉइंट्स व्हिच विल गिव यू क्लैरिटी टू डील विद. कैन वी मूव अहेड? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो नंबर 1, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम बोलते हैं तो लीगल एयर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है डिसीज्ड के डेट को पे ऑफ करने का. मॉरल ड्यूटी अपनी जगह है. ऑफ कोर्स कोई अगर आके बोले कि भाई आपके हस्बैंड का इतना लोन था और बार बार रोज रोज आपके दरवाजे पे आ रहा है, लीगल लायबिलिटी शायद आपकी नहीं होगी, लेकिन मॉरल लायबिलिटी आ जाती है. लेकिन क्रेडिटर्स जैसा कि लिखा हुआ है, दे मूव टू द स्पाउस, हेयर्स, चिल्ड्रन, रिलेटिव, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके डेट क्लियर हो जाए. लेकिन ऐसे केसेस में अगर लीगल लायबिलिटी नहीं है, अगर वो बंदा को बोरोवर नहीं बना है साथ में, तो उस पर्सन की लीगल लायबिलिटी उस पर नहीं आती, स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स में. ऐसे केसेस में जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, जो कि एस्टेट को बेच के या कुछ भी करके अगर हमारा डेट वगैरह पे ऑफ करना है तो हम कर सकते हैं. बट वहां पे लीगल एंगल अराइज नहीं होगा अगर को बोरोवर वो नहीं है. Similarly, spouse, children, they are not responsible for the debt of the deceased unless they have co-signed any loan agreement. तो अगर वो co-borrower बने हैं या guarantor बने हैं, only in that case they will be liable to pay the remaining loan. चाहे वो लोन secured हो या unsecured हो, अगर लोन अग्रीमेंट में कोई co-borrower या guarantor बना है फैमिली मेंबर, तो उसको वहां पे वो लोन के लिए उसको लायबिलिटी आएगी. कई बार ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि कई बार अगर मैंने लोन लिया तो मेरा गारंटर जरूरी नहीं है मेरा कोई लीगल एयर ही हो सकता है मेरे अंकल मेरे लीगल एयर नहीं है, लेकिन मेरे अंकल मेरे गारंटर बन गए. तो उस केस में भी जो बैंक होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, वो उनको परेशान करेगा कि आप ये लोन रीपे करो क्योंकि आपने गारंटी ली. वी कैन मूव अहेड, Bobby. Okay, so as I told earlier, अगर joint loan लिया गया है, Atul, does the guarantor have a legal responsibility to pay off the loan? So ma'am, guarantor has only in case the person, the bank or financial institution is not able to recover the money after trying all the means from the person, assuming the person is alive. If the person is Atul, I can answer that. Please. One Supreme Court judgment is there. There it is written that guarantor is equally liable for the loan even if the borrower is available. Borrower is not giving, suppose 2-3 installment, I will always reach the guarantor. One Supreme Court judgment is there in 2004, which given direction that guarantor will be as equally liable as the borrower in this case. So next time when you take a guarantee, always remember this. Because even the borrower is available, bank will approach you to recover that loan. And मनोज जी, मधुश्री मैम का जो क्वेश्चन था कि अगर बोरोवर की डेथ हो गई
उस केस में तो हाँ। क्लियरली मतलब डेथ हो गई है तो कुछ है नहीं, तो वहां बिल्कुल पे भी बिल्कुल उसमें guarantor- गारंटर देखिए लेटर ऑफ Basically, a सब्रोगेशन guarantor has equal responsibility as the person who has taken the loan. Whether the person responsible, the person who has taken the loan is the first line of contact for the financial institution. However, if, for example, if I have taken the loan and Atul, you are my guarantor, the financial institute will reach out to me first, and if I fail, then they have the legal authority to take it from you and Correct. fully liable. Yes. Correct. Actually, what Atul happens if the borrower has died, main borrower, then they will get a letter of subrogation signed from the borrower. That loan is transferred in his name. And normally bank does not do it, but bank can do it. Correct. Understand. Okay. We hope this is clarifying things better. So जब भी आप गारंटर बने बहुत ध्यान रखें कि इट इज, क्योंकि जनरली जब लोग गारंटर मांगते हैं आपसे तो वो बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, को बोरोवर नहीं, आपको कोई EMI नहीं देनी, कुछ नहीं होता है. But I can share from my experience. Just 2 weeks back, I became a guarantor for one of my colleague in office, and अच्छा खासा 40 पेज का डॉक्यूमेंट है जो उसने साइन कराया. So बहुत ही केयरफुल आपको रहना होगा, because despite all the relationships and everything, if it really gets bad, then equal liability होती है. Okay. Coming to the joint loan, so ये आजकल ट्रेंड है स्पेशली होम लोन में, जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि 2 लाख तक इंटरेस्ट में टैक्स में छूट रहती है. घर इतने महंगे हैं, अगर महीने का हमारा साल का अगर टोटल इंटरेस्ट 5-6 लाख जा रहा है, तो हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों लोग वर्किंग हैं तो वो लोग इक्वली उसको को बोरो करते हैं ताकि दोनों लोग इंटरेस्ट का फायदा उठा सके. इंटरेस्ट में छूट का इनकम टैक्स के लिए दे कैन गेट द बेनिफिट. Now, while that benefit is there, the liability is also there. So, joint loan में जो भी co-applicant होगा, उसकी equal liability रहेगी after the decease, after the main borrower is no more. और अगर वो fulfill नहीं करता है उसको, तो बैंक, financial institution कोई भी है, they can take legal course of action. तो proper recovery का जो process होता है, they can go through that to make you pay the remaining outstanding loan. This is not only applicable for secured loan but unsecured loan also. तो जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी हो, कार हो, घर हो, जिसको वो रिकवर कर ले, बट और कुछ अगर अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन है या और कोई लोन है, तो वहां पे भी लीगल लायबिलिटी बनेगी. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है को ओनर और को बोरोवर की चीज. सो अगर जरूरी नहीं है कि अगर घर 2 लोगों के नाम है तो लोन भी 2 लोगों के नाम हो. सो जरूरी नहीं है कि अगर आप घर में हिस्सेदार हैं और लोन में हिस्सेदार नहीं हैं तो आपको लोन पे करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल, अगर घर हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम है लेकिन लोन सिर्फ हस्बैंड ने लिया था, उस केस में वाइफ की लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो उस लोन को रीपे करे. ऑफ कोर्स क्योंकि घर है इसलिए उस घर के ऊपर बैंक अपना कब्जा जरूर लेकर अपना लोन वसूल कर सकता है, बट वो लोन रीपे करने के लिए वाइफ के ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं कर सकती. बॉबी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो 2 टाइप्स ऑफ लोन्स, वेरी सिंपल, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन. जैसा कि नाम से पता चलता है, सिक्योर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मीन्स हम जिस चीज के अगेंस्ट में लोन दे रहे हैं वो एक फिजिकल मटीरियल एसेट है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. So home loan, car loan, all these fall under secured loan. In case secured loan होता है तो वहाँ पे जो भी asset है उसको वहाँ से बैंक अपने पोजीशन में ले सकता है अगर लोन रीपे नहीं हो रहा है तो. But the lender cannot force the surviving member in the family to repay the loan. वो फोर्स नहीं कर पाएंगे कि आप हमको लोन रीपे करो. इसीलिए जनरली जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उसमें आप देखिए वो प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं, फिर उसको सेल ऑफ करके जो भी उनका पैसा रिकवर हो पाता है वो कर लेते हैं. अनसिक्योर्ड लोन इज अ प्लेस व्हिच इज स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग. अनसिक्योर्ड लोन जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी या कोलैटरल नहीं, उस केस में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथ बंधे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी कोई प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकते. आप क्योंकि को बोरोवर अगर नहीं है तो वो आपको लीगली लायबल नहीं
बना सकते हैं लोन रीपे करने के लिए। और क्योंकि देयर इज नो अदर प्रॉपर्टी और एनीथिंग विच दे कैन फॉरफीट, तो वो उस लोन को टिपिकली वसूल नहीं कर पाएंगे। वो डराएंगे, धमकाएंगे, नोटिस भेजेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन वो लीगली अगर आप को बोरोवर नहीं है तो वो आपसे वो लोन वसूल नहीं कर सकते। वो फिर बैंक के एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, जिसको हम बैड लोन भी बोल सकते हैं, कि वो लोन हमारा मतलब बेकार हो गया, तो वी आर नॉट गेटिंग रिकवरी आउट ऑफ दैट। ओके, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड के बिल जो होते हैं, लोन नहीं होता है। मैंने क्रेडिट कार्ड पे मान लीजिए 1.5 लाख रुपए खर्चा किया, और बिफोर द मेकिंग द पेमेंट फॉर माय लास्ट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट द पर्सन डाइज, वो भी एक तरीके से लोन ही हुआ, क्योंकि हमने बोरो करके खर्चा किया है क्रेडिट कार्ड से। तो ये सब अनसिक्योर्ड लोन्स में आते हैं। तो इन सभी केसेस में लीगल एयर्स की लीगली कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उसको पे करे। कोई कोलैटरल नहीं है, कोई और चीज नहीं है जिससे वो बैंक उसको रिकवर कर सके। एक चीज मनोज जी, इफ यू कैन ऑल्सो हेल्प अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर मेरा एक बैंक में अकाउंट है और उसमें 5 लाख रुपए पड़े हैं, और उसी बैंक से मेरा क्रेडिट कार्ड है जिसका मेरा आउटस्टैंडिंग बिल 1 लाख रुपए है, और वो दोनों एक ही आदमी के नाम थे और उस आदमी की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या बैंक मेरे सेविंग अकाउंट से वो पैसा रिकवर कर सकता है? क्योंकि बैंक नहीं, ये देखिए मैं बता देता हूँ, इट इज नोन एज राइट ऑफ सेट ऑफ, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टिल द पर्सन इज लिविंग। In the case of disease, account is in the dormant state. Now they cannot touch anything there till the final dues is settled. तो देखिए, एक बताएं अतुल जी, क्या है कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल में देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं मतलब बैंकर के हिसाब से कह रहा हूं आपको, क्योंकि बैंक कैन नॉट टेक एनी एक्शन। वो आपको नोटिस भी नहीं सर्व कर सकता सर, वो किसी तरीके लीगल एयर को नोटिस नहीं सर्व कर सकता, वो उसका राइट नहीं है किसी भी तरीके से। जनरली बैंक वाले क्या करते हैं, दे डू द करेसिव एक्शन, मतलब वो धमकाना फोन करके, तो वो सबको आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ओके, थैंक यू। और एक चीज हमको और ध्यान में रखनी होगी, कई बार लोग अपने क्रेडिट कार्ड बिल का ऑटो पे लगा देते हैं कि मेरे सेविंग अकाउंट से कट जाए। अगर ऑटो पे लगा हुआ है तो वो वहां से सेटल हो जाएगा, लेकिन वो अगर सेटल तब हो सकता है जी। लेकिन एक और बात है अतुल ना, वहां पे क्या है कि सपोज ही डाइड ऑन द सच डेट, इट इज द बिल पेमेंट ड्यू इज द बिफोर ऑफ हिज डेथ पीरियड, तो वो बैंक तब कर। लेकिन ऐसा कई बार केस होता है ना कि क्रेडिट कार्ड तो घर में बाकी लोगों के पास भी तो रहता है ना, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कोई और इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी बहुत सारी चीजें उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि इसका नियम ये है कि जिस दिन डेथ हो, आप 2-3 दिन के अंदर तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि दिस क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्टिव, एंड इफ समवन इज यूजिंग इट, it is a illegal part that using that card. Absolutely, I think ये बहुत important point है जो अभी मनोज जी ने शेयर किया, कि डेथ होने के जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो, to the soonest possible time, बैंक में जाके उस बंदे के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड्स को आप इन्फॉर्म करें वहां पे कि इन पर्सन की डेथ हो गई है, ताकि अगर कोई वो ऑटो डेबिट का भी लगा हुआ था तो वो आगे की डेट में अगर होगा तो वो पैसे बच जाएंगे, अकाउंट से निकल के क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं। देखिए, एक और बात हो सकती है ना तुलसी, मान लीजिए उसने SIP लिया हुआ, ठीक है, अब वो तो डेथ हो गई उसकी, अब SIP का अगला वो नहीं कटना चाहिए अगर उसकी डेथ हो गई है तो। करेक्ट। तो आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो ये भी पैसा कटता रहेगा, या हो सकता है कुछ और पैसा कटता रहेगा, फिर आपको कॉम्प्लिकेट करेगा ये सारी चीजें। करेक्ट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जब आप जाके इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा डिसीज्ड का है, उसकी फैमिली का है, लीगल एयर्स का है, तो जाके इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है ताकि जितने भी डेबिट हो रहे हैं वो रुक सकें। बॉबी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू। अब बैंक अपनी लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी जो बैंक के लिए होती है, सो बैंक अपनी लायबिलिटी को कवर करने के लिए, ये सारी चीज़ों को करने के लिए लोन भी प्रेशराइज करते हैं कि आप लोन लीजिए। तो जनरली आप देखिए मॉर्टगेज पॉलिसीज होती हैं हाउसिंग लोन में या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, जिसमें अगर बंदे की डेथ हो गई
या क्रिटिकल इलनेस कवरेज होता है कुछ पॉलिसी में, तो वो उस पॉलिसी से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिकवर कर लेते हैं। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन में जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इट इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, बट क्रेडिट लाइफ में और भी तरीके की पॉलिसीज होती हैं। बैंक अगर पर्सनल लोन दे रहा है तो उसमें भी कभी कभी एक छोटी सी पॉलिसी साथ में ऐड कर देता है कि अगर इस पर्सन की डेथ हो गई तो ये पैसा का जो है मुझे इसका मिल जाएगा। उस केस में क्रेडिट लाइफ पॉलिसी में या मॉर्टगेज लोन पॉलिसी जो होती है, उसमें हमेशा ध्यान रखिए पहला हक बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है। दे विल बी रिकवरिंग द मनी फ्रॉम द क्लेम अमाउंट, जो उनकी लायबिलिटी है बची हुई। अगर कुछ पैसा बच गया तो वो पैसा नॉमिनी को या लीगल एयर को जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं बचा तो वो पूरा का पूरा पैसा बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जाएगा जो उन्होंने अपने लोन को सिक्योर करने के लिए लिया। ओके, नाउ जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बैंक अकाउंट को बंद करना और सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करना, अब बहुत सारे आजकल सब्सक्रिप्शंस चलते रहते हैं। आई थिंक इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने, सबको ही पता होगा, न्यूज में आ रहा है, लगातार एसएमएस आ रहे हैं हम लोगों को कि 1 अक्टूबर से नियम नया लागू हो गया है। हमारे क्रेडिट कार्ड्स पे जो ऑटो डेबिट होते थे सब्सक्रिप्शन की फीस, अगर वो 5,000 रुपए के ऊपर है तो वो अपने आप ऑटो डेबिट नहीं होगा। उसके लिए एक एडिशनल सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन होगा। जब आप उसको ओके करेंगे उसी रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से या ईमेल आईडी से, आई डोंट नो, वो अभी मेरे पास क्योंकि आई नहीं है प्रोसेस, तभी वो आगे प्रोसेस होगा। अतुल जी मैं बोल देता हूँ जी। ये नाउ दिस इज नोन एज टोकनाइजेशन। यू हैव अ टोकन नंबर. So earlier the whatever the pre-PPI companies are there, they are saving our 16-digit card number. So now they cannot save my account number, cannot give it. It is a token now, tokenization. So after 1st October, we receive a token. If the amount is more than 5,000, then auto debit is not there. For every transaction, you will receive a token. That system will be applicable now. Okay, thank you, Manoj ji. सो अब 5,000 के नीचे का क्या करें, क्योंकि 5,000 के नीचे भी अगर मंथली सब्सक्रिप्शन है तो अमाउंट तो कम नहीं होता है, काफी ज्यादा होता है। और जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या कोई भी हो, आजकल अगर आपको 1 महीने के लिए भी लेना है सब्सक्रिप्शन, तो ऐसा कंपनीज ने कर दिया है कि पहले आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दो, वो आपको बोलेंगे आपका शुरू का 1 हफ्ता 2 हफ्ता इट इज फ्री, आफ्टर दैट दे विल डेबिट, और वो हमेशा ऑटो डेबिट होगा अनलेस यू गो एंड कैंसिल इट। तो यहाँ पे हम इस सेशन में सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शंस को कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी है कि आप नंबर 1 क्रेडिट कार्ड कौन कौन से डिसीज के पास है, ये हमने अपने पास सेशंस में कवर किया था, वो आइडेंटिफाई करें, क्रेडिट कार्ड्स को कैंसिल करें, और जितना उनका मेंबरशिप वगैरह अगर कहीं जा रहा है तो वो सारे सब्सक्रिप्शन कैंसिल करें, क्योंकि वो अमाउंट आपका छोटा छोटा करके एक काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। बेस्ट थिंग इज टू कैंसिल दी क्रेडिट कार्ड, because credit card is not something which ideally I hope the family will immediately need after the death of the deceased, because that is the time to consolidate जो हमारे present assets हैं. Credit card is like a liability, it's like a loan we are taking, so it is best to stop the credit card ताकि उसका कभी भी misuse भी ना हो पाए। जैसा कि मनोज जी बता रहे थे, फैमिली मेंबर ज्यादा यूज करते हैं कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड को स्टॉप करना बहुत जरूरी है। और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है कहीं पे भी है, अगर आपने कहीं पे सब्सक्रिप्शन किया हुआ है तो वहां पे आ जाता है डू नॉट ऑटो डेबिट करके ऑप्शंस आते हैं जनरली, वो अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऑटो डेबिट भी नहीं होगा रिन्यूअल। ओके, इसके पीछे एक स्लाइड है क्या? नो, ओके, गो अहेड। थैंक यू बॉबी। सो some do's and don'ts, very very important, we keep repeating it in all our sessions. Never share your passwords or OTP with anyone. अगर आप कभी किसी की हेल्प ले रहे हैं, हम समझते हैं एल्डरली लोग अगर देखने में दिक्कत है या मोबाइल से इतना ज्यादा अडेप्ट नहीं है, उनको अगर दिक्कत है, हमेशा ध्यान रखिए OTP खुद डालिए जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो OTP खुद डालें, किसी को बताएं ना, ईमेल पे व्हाट्सएप पे ना भेजें। पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी आप जब भी दें, ये इंपॉर्टेंट KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमेशा उसमें साइन करने के साथ साथ अपना डेट, उसका पर्पस जरूर लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर आप
गारंटर बनने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, तो उस पर अपना सिग्नेचर और डेट के साथ लिखें फॉर द पर्पस ऑफ बिकमिंग गारंटर फॉर मिस्टर या मिस सो एंड सो ऑन दिस डेट। ये लिख देंगे तो उसका आपका मल्टीपल चीजों के लिए मिसयूज नहीं होगा। तीसरा, जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके खुद के या डिसीज के, एक जगह घर में संभाल कर रखें, सेफली रखें, और उसकी 2-2 सेट फोटोकॉपी जरूर रखें। साथ ही उसको स्कैन करके भी रखें, ताकि मान लीजिए कहीं आप बाहर हैं, किसी दूसरी सिटी में हैं और आपको सडनली डॉक्यूमेंट चाहिए और फोटोकॉपी की सुविधा नहीं है, तो आपके पास अगर स्कैन्ड कॉपी सेव्ड है तो आप उसको भेज सकते हैं किसी को। ओके बॉबी? So before we go into this, there is a quick poll which I would like to run, and here is a question for all of you. So we can't see a question. Achha, I have, so maybe if you can stop the screen sharing, then I will put the whole question. Okay. Bobby, but that was visible to me. It was visible. Achha, Bobby, I think. I don't know. Okay, I will. It was visible to me also. Okay, I will relaunch the. एक second. I cannot relaunch the poll. I think it has ended. अच्छा, relaunch आया. Okay. Okay. The poll is live again. It is not working. 50-50. Okay, we have 3 answers. Answer is not working. सर मनोज जी, आपको होस्ट हो इसलिए आपको होस्ट। अच्छा, okay, it's fine. Okay, so I think all the 4 participants, we have 5 participants, right? So Amit, Ram, Reena, Rohit, and Gauri. Okay, so I'm ending the poll. So here is the result. Well, yes, the correct answer is false. अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो लेंडर सर्वाइविंग पार्टनर से या लीगल एयर से उसकी वसूली नहीं कर सकता। ओनली इन केस दे वर को बोरोवर और गारंटर, उस केस में लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए कोई ऐसा फिजिकल एसेट भी नहीं है जिसको बैंक फॉरफीट करके अपना लोन वसूल कर सके। तो यहाँ पे वो बैंक का एनपीए हो जाएगा, बैड लोन हो जाएगा, बैड डेट, एंड देन इट विल बी क्लोज्ड। बट यहाँ पे वो लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते फॉर द फैमिली मेंबर्स और लीगल एड। ओके, so Bobby, we can put the presentation again, then I will put the feedback board. Thank you. So you all already know how to contact us. Our mail ID is there. Anything which comes to your mind as a question, thank you for asking a couple of questions in this session. Thank you, Manoj ji, for answering those questions as well. Being in the bank, we are sure you know the internal things, and thank you for being so helpful and open about all these things which happen. क्योंकि कई बार कस्टमर को नहीं पता होता और बैंक में इतना कन्विक्शन से बोला जाता है कि नहीं सर ये तो आपको देना पड़ेगा। So in case you have more questions, we would be happy to take. Rohit, you have raised your hand. Please go ahead. Yeah, मैंने chat box में भी लिखा था कि let's say if there is a co-ownership on the property, right, and let's say there is a legal liability on one son and that person dies. So let's say अगर वो co-owner है तो like that lenders जो है या मतलब sorry creditors हैं, can they take the entire house or entire property, or it's like since it's a joint owner तो 50% तक ले सकते हैं? Good question है आपका। I think मनोज जी भी इसको आंसर करना चाहेंगे। Yes. एक मिनट Yes. मनोज जी, इससे पहले मैं रोहित से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। रोहित, एक क्वेश्चन आपके लिए। मान लीजिए घर मेरे और मेरी वाइफ के नाम से है, हम लोग को ओनर हैं, लेकिन लोन मैंने अकेले लिया था, यही केस है ना आपका? राइट। सो जब मैं लोन नहीं कह रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ लोन किसने लिया था? लोन को बोरोवर है कि लोन एक ही इंसान ने लिया? रोहित,
लोन एक ही इंसान ने लिया है। करेक्ट करेक्ट। सो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही है कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग को हाँ, ओनर हैं घर के, लेकिन लोन मैंने अकेले ने लिया है। जब मैंने लोन लिया था तो मैंने पूरे घर का लोन लिया था कि आधे घर का लोन लिया था? पूरे घर का लिया था, आंसर ऑब्वियस है, राइट? मनोज जी अब आप बताइए। हाँ, हाँ, यस यस। देखिए, व्हाट्स योर नेम? सिंह राजीव? रोहित। रोहित। देखिए क्या होता है, पहले बैंकिंग टर्म पे समझ लीजिए। अगर मैं एक लोन देने जा रहा हूं जिसपे 2 लोग ओनर हैं, तो मैं सेकंड से हमेशा एनओसी लूंगा कि अगर इस प्रॉपर्टी को कुछ हो जाएगा, बैंक ऐसे ही चलेगा। बैंक कभी भी ऐसा लोन नहीं देता एक आदमी को कि जहां प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड है और मैंने बाकी से वो नहीं लिया, मतलब एफिडेविट नहीं ले लिया कि इन केस ऑफ प्रॉपर्टी अप टू एक्सटेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी आई कैन कवर दैट। तो ये सारे होते हैं। अगर आप देखेंगे वैसे, अगर आप लीगल जाएंगे तो सिर्फ उसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उसी पे बैंक क्लेम कर सकता है। अगर आपका एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसके अंदर यही होगा कि अप टू एक्सटेंट दैट द डिजीज पर्सन इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी एसेट। ओके, नहीं ठीक है, आई गॉट द थिंग्स। एंड ऑल्सो जब बैंक्स के अलावा भी, जैसे जस्ट सॉरी आई जॉइंड लेट अ बिट, तो जैसे बैंक्स के अलावा भी, जैसे सपोजिटली हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड बिजनेसमैन है एंड नाउ द पर्सन डाइज, अब उसमें क्या होगा? क्रेडिटर्स भी होंगे, डेटर्स भी होंगे, एंड क्रेडिटर्स विल डेफिनेटली कम एंड से कि भी है, तो उसमें लीगल लायबिलिटी कितने तक की होती है? मतलब नहीं, कोई नहीं। देखिए, अगर एक मिनट, अगर क्रेडिटर ऐसा है जिसने उस सिक्योरिटी पे कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया हुआ है तो कुछ नहीं कर सकता वो। अच्छा, यू गॉट माई पॉइंट। जैसे मेरा मकान है, मैंने प्राइवेट बोरोइंग कर रखी है बॉस, ठीक है ना, मेरा बैंक से कोई लोन नहीं है, तो मेरी प्रॉपर्टी को कोई भी चार्ज नहीं है मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो आप जो मेरी वाइफ के ऊपर कोई भी आदमी कोई भी कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे उसका कोई राइट नहीं है जिसका जो अब मुझसे क्लेम करने जा रहा है। तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब वही समझना चाह रहा था, जैसे सर्वाइवर का हो गया, लेट्स सपोज कि एक ही जने की प्रॉपर्टी है, बिजनेसमैन जो था उसी की प्रॉपर्टी है और वही हो गया, तो अगर सपोज क्रेडिटर्स कैन लीगली गो कि जो उनकी प्रॉपर्टी है उससे हमें पेमेंट दी जाए या करी जाए, तो इज इट पॉसिबल, मतलब एज एन फ्रॉम अ लीगल साइड? Yeah, they can go to the court. You see, just a moment. ये कोर्ट जो होता है, कोर्ट हैव अ डिफरेंट रूल्स। ये पीडीआर होता है, पब्लिक डेब्ट रिकवरी एक्ट, उसके अंदर जाएगा, लीगल होगा, लीगल हेयर बोलेगा, तो ये नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है। What we are trying to say here, रोहित, कि अगर वो प्रॉपर्टी मान लीजिए 10 करोड़ की है और लोन सिर्फ 1 करोड़ का है, तो भी despite the fact that legal heir has that much money and they can sell the property and repay, maybe they don't want to sell the property, legally वो liable नहीं है कि वो प्रॉपर्टी बेचकर ही उसका लोन उतारे, बिकॉज लोन लेते वक्त इस प्रॉपर्टी को कोई कोलैटरल या गिरवी नहीं रखा गया था ऑन पे। नहीं, वो मैं समझ गया, लोन की बात नहीं कर रहा था मैं, बाकी बिजनेस की बात कर रहा था। जैसे बिजनेस में सपोज एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, जो मेरे को समझ आया अभी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी घर है, या मतलब जो फैक्ट्री है व्हाटएवर इज जो ऑपरेट, एंड द बिजनेसमैन डाइड, अब उसकी लायबिलिटी सपोज 50 है। अब नाउ लीगल हेयर के पास वो 1 करोड़ आ रहा है, तो बट क्रेडिटर्स विल से कि 1 करोड़ की जगह 50 lakhs तो हमें पे करने हैं आपको, तो 50 आप लीगली पे करिए और 50 आपके लीगल हेयर में है। आउट ऑफ एक्सपेंस तो लीगल है, आउट ऑफ पॉकेट लीगल हेयर नहीं करेगा, दैट आई अंडरस्टैंड, बट जो डिसीज्ड की लाइबिलिटी है उसे सेट ऑफ करने के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, वो तो यूटिलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता, या प्रॉपर्टी का मैटर ही नहीं आएगा, गिवन दैट जो बताया कि लीगली वो उसके साथ अटैच नहीं थी, बट दे कैन गो टू कोर्ट एंड आस्क एन अपील, दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट लीगली वो ऐसे फर्स्ट 1-to-1 नहीं कर सकते, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली। यस यस। देखिए वो ये उस पे क्या होता है कि अगर मेरे पास किसी से मैंने डेप्ट लिया है लेकिन कोलेटरल नहीं दिया है, तो डेप्ट के रिकवरी के लिए वो जा सकता है कोर्ट में। अब अगर कोर्ट ने क्या किया कि हाँ इसकी डेप्ट की वसूली होनी चाहिए और एक एडमिनिस्ट्रेटर रिक्रूट कर दिया, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या एक्सक्यूटर होगा वो क्या कर सकता है कि एज यू आर हायरिंग, यू आर गेटिंग इनहेरिटेंस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो यू शुड पे द लायबिलिटी ऑफ द डिजीज्ड आल्सो। मेरी मतलब समझ में आया आपको? वो अगर आप, बट अप टू द
inheritance up to the inheritance. up to the extent of, मान लीजिए उसके 3 लड़के हैं और वाइफ है, तो अब तो 4 प्रॉपर्टी के हिस्से हो गए। अब वो किसको बोलेगा कि किसको पैसा दीजिए? भाई हर एक बोलेगा कि मेरे पास इतना हिस्सा है, इस हिस्से से जो दे सकते हैं लायबिलिटी में वो हम लोग पे करेंगे। बट दिस इज सब जुडाइज मैटर, मतलब ये कोर्ट जाएगा, ठीक है? कोर्ट जाएगा, राइट। ये है। Okay, अगर Reena has unless वही है secured अगर नहीं, सॉरी, secured है तो then it's simple straightforward, but अगर unsecured है तो कोर्ट है, तो राइट, ठीक है, थैंक यू। हाँ, दिया तो कोर्ट। Reena, go ahead. Yeah. There is, in case of ancestral property, there is a clear-cut will in the name of my husband. And it is a building where different units were occupied by my father-in-law and his brothers. And during his lifetime, what they did was there was some selling and buying in between. इसने उसका पोर्शन खरीदा, उसने उसका खरीदा। तो अब वो जब पीछे चेन ट्रेस आउट कर रहे हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो उसमें से एक लिंक मिसिंग है। ओके, तो अटक गया उस पॉइंट पे आके। हाँ बिल्कुल, देखिए ये व्हाटएवर इट इज, एक्चुअली यहाँ पे आपका म्यूटेशन कंप्लीट नहीं हुआ प्रॉपर्टी का। तो विदाउट कंप्लीटेशन ऑफ म्यूटेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट, इज म्यूटेशन लॉ, दैट मींस ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखिए एक बात जान लीजिए कि नॉर्मली हम लोग जब किसी के एनईसी देखते हैं, नॉन इनकम्बरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, तो 33 इयर्स का सर्च रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी है। इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी की डीड आपके पास है कि नहीं है? हाँ है, वो है ना आपको? हाँ। तो वहां पे, हाँ, तो आप उस पे से सर्च कराइए कि उसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी कितनी बार हुई है। वो म्यूटेशन बना सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस, लीगली बनवा सकती हैं आप उसको। ओके। और उस प्रॉपर्टी के जितने भी म्यूटेशन हुए होंगे, एक्चुअली क्या होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी में हिंदू लॉ लगता है, जिसमें कि एवरीवन इज पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जितने भी शाखाएं प्रशाखाएं होंगी, बेटियां होंगी, सबको प्रॉपर्टी मिलती है भारत में एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। तो दैट्स व्हाई, लेकिन ये क्लियर कट अगर आप एक बार बनवा लेंगे कोर्ट में जाकर के, आप बोलिए कि ये पोजीशन है हमारी, हमारे पास ये ओरिजिनल टाइटल डीड है, एंड in between the transfer there is a missing part is there, that can be done, you can do it through court. Okay, thank you. Thank you guys for asking questions. And now let me put the feedback because this is very important. So here is the feedback on your screen. If you can please share the feedback for today's program. Okay, so thank you so much. Good to see the numbers. And in fact, as Madhushi ma'am said, this is one of the most interesting yet controversial, yet this topic is very interesting. I mean, properties and everything. I mean, I think lawyers ka आधा काम इसी से चलता है. So thank you so much for being part of it today, ma'am. Over to you. आप mute पे हो ma'am. Yeah. Sorry. Thank you so much for participating. We had a very small participation today, but still the session was very rich. Hope more and more people will benefit through the recording of this session. Request to all of you, if you have people who are struggling with just taking control and handling both their finances after the death of any key member, or need to know some basics about insurance, about succession, about real estate, about inheritance, guide them to our YouTube link, and it's just an attempt from us to help the larger society. Thank you so much. With this session, I think we are ending our series of I Am Power, unless we have some requests coming in of something specific that needs to be covered. So we are completing this, and thank you so much. On behalf of the entire team, I thank all of you for supporting us. Over to my Thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone. Thank you.
And with your permission, everyone, we will stop the recording. Thank you.